Hello everyone, this is our English class and today we will complete our chapter number 7, The Tiger or the Lady. In last class we studied about how a king is giving judgment on the name of fate and how he is judging every criminal and giving his judgment basis on the which door open. The criminal has given choices of two gates, so, whichever gate the criminal chooses, his punishment or his prize will be defined by that gate. If he opens one gate and the lady came out, then he'll he has to marry that lady. And if the second he opens the second gate, then a hungry tiger came out and he'll be eaten by that tiger. So, in the name of judgment, he's giving this kind of, uh, you know, punishment to the criminals, and everyone in his kingdom is sitting in that arena watching this whole entertainment piece. So, what happened in the last class was what we studied. Apart from this, is how king's daughter, the beloved of that local man, got caught by the king, and king now is punishing that local man to love his daughter, and that local man is totally dependent on king's daughter, that she will going to guide him to open the right gate and not the lady one, not that tiger one. So we'll cover this para as well. When the accused bowed to the royal box, as was the custom, he looked only at the princess, and immediately he knew he had expected her to find out the secret of the door, and now he knew that she had the answer. जब अक्यूज को लाया गया, वो राजा के सामने झुकता है, ठीक है, एरिना के अंदर गेट खुलता है, वो आता है, राजा के सामने झुकता है और वो देखता है प्रिंसेस की तरफ, तो उसको लगता है कि अब ये ही जो है उसको बचा सकती है, इसको दरवाज़ा सही खुलवाएगी, लेडी वाला दरवाज़ा खुलवाएगी, ना कि टाइगर वाला, कि इसने सीक्रेट जो है वो पता कर लिया है इस चीज़ का कि कैसे सही दरवाज़ा खोलना है, कौन से वाले दरवाजे की तरफ. It was only left for her to tell him, और वो ही बची थी जो उसको बता सकती थी. His quick glance at her asked, which it was as plain as if he had shouted it. उसने जैसे ही उसकी तरफ नज़र दौड़ाई तो वो समझ सकते थे कि वो एक नज़र में ही उसकी तरफ देख करके पूछ रहा है कौन सा. और ये इतनी नॉर्मल चीज़ थी कि कोई भी समझ सकता था कि जो वहाँ एरिना में बैठा हुआ था कि उस जैसे कोई उसने चिल्ला के पूछा. There was no time to lose. The quick question had to be answered just as quickly so that the king would not suspect. ये बहुत ही उसको जल्दीबाजी में जवाब देना था जिससे कि राजा जो है उसको बिल्कुल भी शक नहीं हो. ठीक है. Her right hand was resting on a pillow in front of her. उसका सीधा हाथ जो है एक पिलो पर रखा हुआ था. She raised it slightly and made a small fast movement to the right. उसने अपना फटाफट से हाथ उठाया और सीधे दरवाजे की तरफ उसने इशारा करते हुए सीधी तरफ का इशारा किया. नो वन बट हर लवर सॉ हर. किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ उसके लवर यानी कि नॉर्मल आदमी जो था उसने देखा. एवरी आई इन द एरिना वॉज फिक्सड ऑन हिम. हर एक आँख जो है एरिना की अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सबकी निगाहें उस आम आदमी पे ही थी जो एक राजा की बेटी से प्यार करता था. He turned, and with a firm and rapid step, he walked across the empty space. वो मुड़ता है और धीरे धीरे जाता है एक खाली जगह पर. Every heart stopped beating, every breath was held, every eye was upon him. Without hesitation, he went to the door on the right and opened it. हर एक व्यक्ति जो बैठा हुआ था उस एम्पी थिएटर के अंदर, जिसकी निगाहें उस आम आदमी पे थी, उसका दिल रुक चुका था, थम चुका था, सांसें रुक चुकी थी. हर एक व्यक्ति की आंखें उस नॉर्मल आदमी पे थी जिसने क्या क्राइम किया था, जिसने राजा की बेटी से प्यार करने की गलती करी थी. विदाउट हेजिटेशन ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट एंड ओपन इट. बिना किसी हिचकिचाहट के वो सीधी तरफ जो दरवाज़ा उसकी तरफ जाता है और उसे खोल देता है. डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर और डिड द लेडी. क्या आया उस दरवाजे को जैसे ही उस व्यक्ति ने खोला, टाइगर आया या लेडी आई.
द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इट इज़ टू आंसर। जितना हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे उतना ही इसका कठिन है इसका जवाब देना। इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच लीड्स टू मेजर्स ऑफ पैशन, लव, हेट, एक्साइटमेंट। ये एक तरीके की ह्यूमन हार्ट की स्टडी है जो एक सॉल्व करती है पैशन को, लव को, हेट को, एक्साइटमेंट को। यानी एक पजल की तरह है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस। अब इस क्वेश्चन का जवाब खुद के लिए नहीं करें बल्कि अपने आप को प्रिंसेस की जगह पर रख के देखें। शी वॉज हॉट ब्लडेड एंड semi barbaric, and her soul burned with the twin desires of longing and jealousy. वो भी गर्म खून वाली थी, ठीक है, उसको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो भी सेमी बार्बरिक थी, यानी कि उसको भी वो भी क्रूर थी लेकिन थोड़ी कम थी, और उसकी आत्मा जल रही थी। दोनों जो विचार उसके समय आ रहे थे उसके समय कि एक तो उसको अपने बिलवट को बचाना है और दूसरी तरफ अगर वो उसे बचाती है तो वो एक जेलसी में रहेगी, क्योंकि दूसरा दरवाज़ा खोलते ही लेडी वाला दरवाज़ा अगर वो चूज़ करता है और वो उसे खोल देता है तो उसकी सबसे सुंदर लड़की जो है उससे शादी होगी, क्योंकि उसके अंदर सबसे सुंदर लड़की थी और उसको उसके साथ रहना पड़ेगा। और वो उसको अगर बचा लेती है, प्रिंसेस अगर उस आम आदमी को बचा लेती है तो वो उसकी शादी नहीं कर पाएगी उससे कभी भी, क्योंकि उसकी शादी उस लड़की से होगी जो उस दरवाजे के बाहर निकलेगी गेट खोलते ही। She knew that she had already lost him. उसको पता था कि उसने उसको पहले ही खो दिया है। But to whom? But किसके उसमें खोया है ये नहीं पता था। How often she had lain awake at night imagining the horror of her lover being killed by a tiger. और अक्सर उसको इस तरह की रात में वो जग रही थी क्योंकि उसको समझ आ रहा था कि वो अपने बिलवड को खो देगी। उसको ये चिंता सता रही थी कि उसको टाइगर खा जाएगा। Even her dreams, she had covered her face with her hands to hide from cruelty. सपनों में भी अक्सर वो जब सपने देखा करती थी तो वो अपने फेस को ढक लिया करती थी अपने हाथों से। क्यों क्यों ढक लेती थी अपने हाथों से? ये जो क्रूअल्टी चल रही थी, जो क्रूरता होने वाली थी, उसको सोच करके उसका बहुत डर लगता था और वो अपना फेस कवर कर लेती थी। बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर। लेकिन उसने दूसरे दरवाजे के सामने कितनी बार उसको सपनों में देखा होगा यहाँ से एक लेडी निकल के आएगी। शी इन हर माइंड शी हैड स्क्रीम्ड एंड टोर्न हर हेयर व्हेन शी सॉ हिज हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर टू द लेडी। कई बार उसने अपने दिमाग के अंदर वो चिल्लाई है, उसने बाल नोच लिए जब उसने देखा कि वो आम आदमी जो उसका बिलवड है वो कितना खुश है जब उसने वो लेडी वाला दरवाज़ा खोला। Her soul burned in agony as she saw him rush to that woman and then be wedded in the next moment, and all about her were joyous. अब उसकी आत्मा कितनी जली है इस तरह के गुस्से में, इस तरह के विचार में, इतने दुख में कि उसने जब देखा कि कैसे उसने लेडी वाला दरवाज़ा खोला है उसके बिलवड ने और वो उसको देखता है, उसके पास जाता है और उससे शादी कर लेगा दूसरे ही क्षण और हमेशा के लिए उसके लिए सारी चीज़ें खुशहाल हो जाएंगी। She lived through the misery of procession, the happy couple, the singing and dancing, and the shouts of crowd, the laughter of wandering children. उसने इस दुख को कई बार एहसास किया है, कई बार जी है वो इस दुख के साथ में। मतलब उसको ये विचार जब आया, जब उसने सोचा कि उसके बिलवड में दूसरा दरवाज़ा खोलेगा तो क्या क्या होगा, उस चीज़ को उसने कई बार, इस एक्सपीरियंस को कई बार जिया है, ठीक है, कि कैसे शादी हो रही है, एक हैप्पी कपल है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्राउड चिल्ला रहा है, बच्चे खुश हो रहे हैं। Her tears, of course, were lost in all the joy. उसकी आंसू जो हैं इन सारी खुशियों में कहीं खो गई। मतलब उसने इस एहसास को कई बार एक्सपीरियंस किया है। Would it be better for him to die at once? क्या ये सही रहेगा कि वो एक बार नहीं मर जाए? Then he could go to the place after death and wait for her.
उसके बाद वो उस जगह पर जा सकता है मौत के बाद एक जगह पे और उसके लिए वेट कर सकता है। यानी कि अगर वो एक बार में मर जाता है तो फिर वो किसी और का नहीं हो पाएगा और वो सिर्फ इसी का रहेगा और उसके मरने के बाद में ये उससे मिल पाएगी। इस तरह के विचार इसके दिमाग में आ रहे हैं। एंड येट दैट ऑफुल टाइगर, those shrugs and that blood। और अब जब उसको ये विचार पहले आ चुका है कि इसकी शादी किसी और से हो जाएगी और फिर उसके बाद ये मतलब हो जाएगा, और उसके साथ में दूसरा विचार क्या चल रहा है कि अगर ये मर जाता है और उसके सामने टाइगर आ जाता है तो क्या होगा। वो टाइगर, खूंखार टाइगर इसके सामने आएगा, इसकी चीख निकलेगी, ये चिल्लाएगा, फिर सब जगह खून हो जाएगा क्योंकि इसको खाएगा, सबके सामने चबाएगा। तो ये विचार भी इसको परेशान कर रहा है। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट शी मूव्ड हर हैंड। उसने डिसीजन ले लिया था जैसे ही उसने अपना हाथ का मूवमेंट किया। जब उसकी नज़र उस बिलवड से मिली, जब वो आया खाली प्लेस में और रॉयल बॉक्स के सामने उसने झुका और अपनी राजा की बेटी पर उसने की तरफ देखा और राजा की बेटी ने उसको देखा और अपना हाथ उठा करके सीधे हाथ की तरफ इशारा किया, तभी उसने अपना डिसीजन तय कर लिया था। She had known that he would ask, but she had put off her decision until the last moment. उसको पता था कि वो उससे पूछेगा और उसने अपना डिसीजन जो है लास्ट क्षण के लिए ही बचा रखा था। She finally decided and without hesitation she indicated the right hand door. उसने फाइनली डिसाइड कर लिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे हाथ की तरफ जो दरवाजा है उसकी तरफ उसने इशारा किया। This is not a question to be taken lightly. ये क्वेश्चन आसानी से नहीं लिया जा सकता, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। Her decision was serious for her, so I do not presume to answer for her. ये डिसीजन जो है उसके लिए बहुत सीरियस था, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि इसको मैं जवाब दूँ। यहाँ पे ये कौन कह रहा है? फ्रैंक आर स्टॉकटन जो है वो कह रहे हैं, जो नरेटर है वो कह रहे हैं कि मैं उसके आंसर नहीं दे सकता उसके डिसीजन का। आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू। मैं ये आप सब के लिए छोड़ देता हूँ जवाब देना। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, द लेडी और द टाइगर। कौन बाहर आया होगा उस दरवाजे से, लेडी या टाइगर? सो बेसिकली दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। हमने यहाँ पर पढ़ा कि कैसे जो नरेटर, जो राइटर हैं, ऑथर रहे हैं फ्रैंक आर स्टॉकटन, उन्होंने एंड में इस चैप्टर को बिल्कुल इनकम्प्लीट छोड़ दिया। उन्होंने इसकी मिजरी जो है वो सॉल्व नहीं करी, इसका आंसर जो है उन्होंने नहीं दिया कि कौन उस गेट के बाहर आया होगा, टाइगर आया होगा या लेडी आई होगी या क्या रहा होगा। इस पूरे चैप्टर का जो एक लास्ट एंडिंग थी वो उन्होंने एक सस्पेंस में छोड़ दी और वो उन्होंने लीव इट टू ऑल ऑफ यू, मतलब आप सबके लिए छोड़ दिया, जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उनके लिए छोड़ दिया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस चैप्टर को आप समझें, आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कि कौन बाहर आया होगा। क्योंकि ये इनका मानना यहाँ पे ये है कि इस तरह का डिसीजन लेना, उसका आंसर देना, ये बहुत ही अपने आप में सीरियस चीज़ है, तो मैं ये ना करना चाहूँगा, मैं ये आप पे छोड़ना चाहूँगा। सो जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक स्टोरी जो है वो अपना एक पहले बिल्ड कर रही है, अपनी क्यूरियोसिटी बिल्ड कर रही है, अच्छे से सस्पेंस बिल्ड कर रही है धीरे 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 धीरे, और फिर उसके बाद में एंड में जो है वो सस्पेंस जो है वो लेफ्ट, मतलब कि वो क्यूरियोसिटी जो पढ़ने वाले हैं उनकी इच्छा जो है आगे क्या हुआ जानने की इच्छा जो है वो वही रह गई। So that's all for today. We completed this chapter. I hope you'll understand this chapter. Have a nice day, students, and God bless you all.